کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، ہاں پگلیٹ کیا کہہ رہے؟ تم کو تیاری ہے چپڑا؟ یہ واٹس ایپ میں کال کر رہے ہو چپڑا؟ ارے پگلیٹ یہیں پر اچھے سے بات ہوتی رہے پگلیٹ۔ نہیں چپڑا نہیں پگلیٹ، ارے پگلوا، ارے پگلوا بھاگا۔ ابھی دیکھو اس کو پھر کال کروں گا پھر بھاگے گا، یہ دیکھو وہ کال کر رہا ہے دوسری والی۔ یہ دوسری والی کال کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ 1 منٹ میں کال کاٹ کے بھاگ جائے اور ریکارڈنگ اس کو واٹس ایپ گروپ میں ڈالتا پھرے بات ادھوری سے، لیکن یہاں پر یہ ایسا نہیں کر پاتا واٹس ایپ کال پہ۔ ارے پگلوا کاہے کاٹ رہے ہو رے بھیا، کاہے کاٹ رہے ہو رے؟ ارے چوپڑا، ارے چوپڑا کاہے تم کاٹ کال رہے ہو کیوں نہیں اٹھا پگلوا؟ رہے ہو؟ اے پگلوا، اے شارق موچی ذلیل ارے پگلوا، چوپڑا، اے پگلوا، ارے اے چوپڑا گدھا، تم کال اے کیوں نہیں اٹھا رہے گدھا، ہو؟ او گدھا سنو، میں یہ کہہ ارے رہا چوپڑا تم ہوں کال کہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس میں وہابیوں میں ریکارڈنگ نہیں اور ہوتی ہے چوپڑا۔ خنزیر میں ایک فرق بتاؤ، چلو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا، ایک فرق بتاؤ چلو۔ وہابی میں اور خنزیر میں ایک فرق بتاؤ، 10 لاکھ روپے ابھی لے لو، ابھی ترنت ہینڈ ٹو ہینڈ۔ شارق کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ ایسا پگلیٹ ہے، اتنا بڑا وہابیوں کو ذلیل کرنے والا شخص ہے، یہ اتنا بڑا پاگل ہے۔ اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہابی میں اور خنزیر میں ایک فرق بتا تو نہیں بتا رہا ہے، اس کو 10 لاکھ روپے ابھی دوں گا میں، ایک فرق بتانا خالی۔ یہ کہتا ہے کہ مشرکین مکہ اور سنیوں کے وسیلے میں کیا فرق ہے، پچھلی بار ہم نے اس کو فرق بتایا تھا، ابھی اس سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہابی اور خنزیر میں ایک فرق بتا دے، ہم اسے 10 لاکھ روپے دیں گے، لیکن یہ ہمارے 1 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا تھا کیونکہ ہم نے اسے فرق بتا دیا تھا کہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کا بیٹا بیٹی سمجھ کے وسیلہ لگاتے تھے اور ہم اللہ رب العزت کا بندہ سمجھ کے وسیلہ لگاتے ہیں، تو یہ بھاگ گیا تھا 1 لاکھ روپے لے کے، لیکن ہم اسے 10 لاکھ روپے الحمدللہ دیں گے۔ اے شارق پگلوا، ارے اے چوپڑا موچی، سنو سنو، اے چوپڑا اے جوتا چپل، سنو، تم صرف جو ہے نا ایک فرق بتاؤ، 10 لاکھ 20 لاکھ کی بات نہیں ہے، مشرکین مکہ کا وسیلہ اور تمہارے وسیلے میں ایک فرق بتاؤ اور بات کو ختم کرو، چلو۔ مشرکین مکہ میں اور ہمارے میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ وہ مشرکین مکہ خدا کا بیٹا اور بیٹی تصور کرتے تھے۔ کیا لات بابا؟ منات عزا کو خدا کا بیٹی مانتا تھے وہ؟ لات عزا منات کو جنوں فرشتوں کو خدا کا بیٹا بیٹی مانتے تھے۔ نہیں، لات منات عزا کو خدا کا بیٹا بیٹی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے سفارشی بن جائیے۔ تو وہ لات عزا منات کا وسیلہ لگاتے تھے۔ اچھا، لات عزا منات کا وسیلہ نہیں لگاتے تھے، ان کا بت بنا کے ان کے پاس اللہ کا سفارشی نہیں بناتے تھے، ٹھیک ہے؟ دلیل پیش کرو کہ وسیلہ لات عزا منات کا لگاتے تھے، پھر میں دلیل دوں گا کہ ارے تو لات عزا اللہ تعالیٰ منات نے جو کو کیا بات کرتے بولی تھے، ہے، نہیں 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 وہ نہیں، کیا کرتے تو تھے، وہ بت جو بناتے تھے وہ ارے سنو تو کیا یار، کرتے میری تھے، بات سنو تو سنو، پہلے، وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کا بیٹا جو بیٹی بت بناتے بنائے تھے، تھے، میں دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ کا ایک سیکنڈ، اللہ کا بیٹا بیٹی بناتے تھے اور سفارشی نہیں بناتے تھے۔ اللہ کا بیٹا اور بیٹی بناتے تھے اور سفارشی نہیں بناتے تھے، کس کو؟ لات منات عزا نیک انسان کو۔ بھئی یہ تو تم دلیل دو گے نا۔ دلیل میں دوں گا، تم دعویٰ تو پیش کرو۔ تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا مشرکین مکہ میں اور اپنے وسیلے میں ایک فرق بتاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ مشرکین مکہ جو تھے وہ کن کے والے وسیلے کی تم بات کر رہے ہو، جیسے کہ یہود و نصارہ والے یا لات عزا منات والے یا نہیں نہیں، جن مشرکین اور مکہ، فرشتوں مشرکین والے؟ مکہ، مشرکین مکہ جنہوں نے 360 بت بنائے تھے۔ 360 بت بنائے تھے، ہاں، ہاں، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے جا کر کے کہ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ کے وہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ سفارشی ہیں۔ ٹھیک ہے، کس کے بارے میں؟ یہ لات عزا منات کے، ٹھیک ہے؟ یہ بت، ہاں بتوں کے بارے میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، سارے بت تھے وہ۔ نہ کس کس کا بت تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لات منات عزا، جن کے بارے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے بخاری میں کہ وہ نیک صالح لوگ تھے، ان کا انہوں نے بت بنا لیا، جو حاجی انہوں نے کہا لات ایک حاجیوں کے لیے سب کچھ بولتا تھا۔ کیا تھے؟ نیک ان صالحین لوگ کے تھے۔ زمانے کے، ارے ان کے زمانے کے نیک صالحین لوگ تھے کن کے زمانے کے؟ جن کا انہوں نے بت بنا لیا، ان کن کے کے زمانے زمانے کے، کے؟ کن کے زمانے کے؟
उनके जमाने के, अरे उनके किन के जमाने के? अरे उनके बाप दादाओं के जमाने के। अच्छा, उनके बाप दादाओं के जमाने के ये नेक सालिहीन लोग थे। कौन? लात, उज्जा, मनात, ठीक है। अरे शारिक नेटवर्क चला गया। मानते थे, अरे सालेहीन मानते थे, कहाँ भाग गया? अरे मैं यही हूँ, नेटवर्क तुम्हारा जा रहा है। तो तुम ये कह रहे हो हाँ। कि ये उनके बाप दादाओं के जमाने के सुनो नेक सुनो मेरी सालिहीन बात लोग सुनो, थे, मेरी ठीक है। बात सुनो, मेरी बात 10 बार रिपीट नहीं करो, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा क्लियर हो दावा जाएगी है ना? कि मुशरिकीन मक्का, 10 बार मत रिपीट। मेरा दावा है, मुशरिकीन मक्का ने जो 360 बुत बनाए थे वो उनके नेक सालेहीन लोग थे, जिनको वो अल्लाह के यहाँ सिफारसी बनाते थे बुत के रंग में। अच्छा, तुम्हारा ठीक है, ये बोलो। दावा है, तुम्हारा ये दावा है कि वो अरे एक ही बात को नेक रिपीट सालिहीन मत लोग करो, थे। अपनी बात बताओ। हाँ, एक ठीक है। हाँ सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा ये दावा हाँ है कि वो नेक सालिहीन लोग थे और उन्हीं का वो वसीला बनाते थे, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन अब ये देखो, मैं एक आयत पेश करता हूँ, ठीक है। करो करो करो। हाँ, ये एक आयत मैं तुम्हें पेश करके बता देता हूँ। पहले दावा तो पहले पेश कर लो, फिर आयत पेश करना। आयत किस लिए पेश कर रहे हो? हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ। पहले दावा पेश कर लो, दावा पेश करो, अभी 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 बता रहा हूँ। दावा पहले पेश कर लो, हाँ, अभी एक फिर मिनट आराम रुको। से। हाँ, हाँ, ये दावा ले लो। पहले पेश करो, दावा कर लो। हाँ, तो ये आयत के साथ आ जाएगा दावा, ठीक है। ये आयत है सूरह नहीं नहीं नहीं, निसा की, पहले पहले आयत दावा कर नंबर लो, पहले दावा 117। कर लो। सुनो तो आए? शारिक, हाँ, आयत बताओ। है सूरह हाँ, निसा की, आयत नंबर 117। 17। अल्लाह फरमाता ठीक है। है, ये जो खुदा के सिवा परस्तिश करते हैं तो औरतों ही की, और पुकारते हैं तो शयातीन सरकश ही को। तुमने कहा ठीक। कि वो मुशरिकीन मक्का जिनको बुत बनाए हुए थे वो नेक थे, सालेहीन थे। अल्लाह फरमा रहा है कि ये परस्तिश करते तो औरतों ही की, और पुकारते हैं तो शयातीन ही को। अब तुम ये बताओ, अल्लाह तो कह रहा है कि ये शयातीन को पुकारते हैं, तुम कह रहे हो कि वो नेक लोग थे। अभी बताओ कि मानू हो गया, तुम्हारी, मानू किसकी? हो गया, हो गया। हाँ हाँ, हो गया। हाँ, देखिए, अमन चोपड़ा ये बात बोल रहा है कि वो शैतान को पुकारते थे, तो उनके तुम्हारा ये दावा कि वो बुत को पुकारते थे, ये पूरी तरीके से फेल हो गया। ठीक है, कुरान के हिसाब से हाँ, बुत को नहीं पुकारते थे ना? किसको? अरे मुशरिकीन मक्का वो बुत को नहीं पुकारते थे ना? बुत किसके बनाए हुए थे वो? अरे बुत को पुकारते थे कि नहीं? अल्लाह तो कह उन्हीं रहा के है बनाए हुए शैतान थे को भाई। पुकारते थे। हाँ, तो वो बुत को नहीं पुकारते थे, ऐसे बोलो ना तुम। अब तो शैतान का, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो? अरे हम तो मान रहे हैं भाई, हमारे ना, कहाँ मान रहे हो? हमारा तुमने दावा कहा है। कि वो सुनो नेक हमारा दावा, सालिहीन सुनो लोग सुनो थे। सुनो। तुमने कहा अमन वो नेक चोपड़ा, सालिहीन हमारा लोग दावा थे। सुनो। ये ए वहां अमन फंसा, चोपड़ा, हमारा, ये वहां भी फंसा। अरे 1 लाख दावा तो रुपए सुन लो देगा अमन भी, चोपड़ा, अब 1 पागल। लाख रुपए लेके भागा चल रहा है ये। अरे पागल, ये भागा वहां में भागा, फंस गया। दावा तो सुन ले पगले। अरे पी के अरे मस्त, पगले, दावा सुन ले। अरे पी के मस्त पागल वहाबी, खामोश हो जा, खामोश। मेरा जूते दावा चप। फिर सुन ले, नहीं समझ रहा अरे तू। मोची, मेरा दावा है कि मुशरिकीन मक्का बुत के रंग में नेक सालेहीन लोगों को पुकार कर अल्लाह के यहाँ सिफारसी बनाते, अल्लाह ने इनको शैतान की इबादत कहा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने कहा शयातीन ही को पुकारते हैं ये। अबे पागल, बिल्कुल जाहिल, घामड़ वहाबी, बिल्कुल, तो फिर अल्लाह वैसा की बोलो ना बात कि को बुत को चेंज नहीं कर रहे हो, पुकारते तुम्हें थे। शर्म नहीं आती? अल्लाह ने कहा अच्छा, शैतान शैतान को, ही को, शैतान ही को। बिल्कुल बिल्कुल, तो बुत अल्लाह ने ये बुत नहीं काहे कहा कि बनाए बुत थे? के रंग में, अल्लाह ने अरे तो बुत के बुत रंग में नहीं काहे कहा। बनाए थे? हाँ, तो हम अबे बता रहे हैं ना, पागल बुत काहे कहीं बनाए थे? का, अबे जाहिल, अरे बुत कुरान को काहे चेंज कर बनाए रहा है, थे? कुरान को चेंज करने की अरे बुत कोशिश कर काहे रहा है। बनाए थे वो लोग? इतना बड़ा अच्छा, कज्जाब है। अल्लाह ने कहा, अच्छा अल्लाह अल्लाह ने क्या ताला ने कहा? जो कहा कि अल्लाह ने तुम कहा वो बुत बुत के काहे रंग बनाए में। थे? अल्लाह ने कहा अच्छा, शयातीन इन्नल ही लज़ीना को तदऊना मिन पुकारते, दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, शयातीन जिनको तुम ही अल्लाह को के सिवा पुकारते हैं। पुकारते हो, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। हाँ, ये शैतान बंदे थे क्या? शैतान बंदा नहीं था, अल्लाह का बंदा नहीं है शैतान। अच्छा, जाहिल शैतान बंदे घामड़ थे। कहीं का, अच्छा अच्छा, तो शयातीन ऐसा अल्लाह बोलो के कि बंदे इब्राहिम नहीं है। अलैहिस्सलाम शैतान थे माजल्लाह। जाहिल तो कहीं का, वो इब्राहिम शयातीन अलैहिस्सलाम अल्लाह शैतान का थे बंदा माजल्लाह। नहीं है। ये देखो, इसने हाँ, अल्लाह की इब्राहिम अलैहिस्सलाम आयत शैतान का थे। इनकार कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ऐसा कह रहा बोलो है ना कि वो शयातीन ही जिनको को पुकारते पुकारते हैं, थे, अल्लाह और ताला ये ने कह कहा रहा कि है कि जिनको तुम नेक अल्लाह के बंदों सिवा को पुकारते पुकारते हो, थे। अपने रब के अब तकर्रुब चला, में रहते हैं, पुलिस के लिए उसे तलाश करते हैं। क्या पता करोगे चल अब? गया, हमारा मुशरिकीन का अरे फर्क भी पगले, पता चल गया। अरे पागल वहाबी शराबी, शराब पी अरे के कुरान पगले, में इब्राहिम तहरीफ कर अलैहिस्सलाम रहा है। शैतान थे क्या? ये बता, अल्लाह ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम शयातीन शैतान ही थे? को पुकारते हैं, ये शयातीन ही इब्राहिम को पुकारते अलैहिस्सलाम हैं। शैतान थे, तूने हाँ या कहा ना? नेक को पुकारते हैं, अल्लाह ने बिल्कुल, कहा वो शैतान शयातीन शरकत ही को ही को। पुकारते हैं जब। क्या अच्छा, पुकारा? शैतान सर्कस को ही पुकारते हैं, तो बुत लेकिन के रंग में नेक लोगों को पुकारा। नेक लोगों ने कहा, क्या कहा कि नहीं अल्लाह, हम नहीं जानते कि ये हमारी बात करते थे। अबे घामड़ पगलेट कहीं का, फंस गया, मर गया। अब तू ये बता, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये जब पुकारते हैं तो शैतान ही सूरह को अल पुकारते अहकाफ, हैं।
शैतानी को। बुत तू खत्म हो कह गया रहा है ना कि तुम्हारे शैतान बाप। नेक बंदों के रंग में शैतान को पुकारते थे। अबे जाहिल, तू कह रहा नहीं है कि नेक ना, बंदों को नेक पुकारते थे। बंद अरे पागल अबे बुत कहीं के का, रंग में कुरान नेक में बंदों तहरीफ को कर रहा है। पुकारते और दर कुरान हकीकत में शैतान तहरीफ, को पुकारते, ना कि इतनी नेक बंदों को बड़ी पुकारते। जहालत मैंने आज तक नहीं देखी। अबे यहाँ पागल अल्लाह आदमी, कह रहा है अगर कि वो शैतान शैतान को को पुकारते पुकारते थे। तो बुत काहे बनाए और थे? अल्लाह ताला भामर बंदों से कहीं क्यों का। पूछेगा? अच्छा ये बता, बुत किसके थे? नेक लोगों के थे। अभी तूने कहा बुत बुत नेक नेक लोगों लोगों के के थे। थे, अब वो पुकारते नेक किसको लोगों के थे? बुत थे। किसको पुकारते थे? शैतान को, शैतान को। बुत नेक लोगों के थे, पुकारते शैतान को थे। अबे पगले, नेक लोगों को। अच्छा, अभी कोई अगर आदमी राम को पुकारता है तो राम को पुकारता है कि शैतान को पुकारता है? तो और राम को पागल पुकार रहा है आदमी ना। अबे पगले, राम को पुकार रहा है, राम को पुकार रहा है। मतलब अल्लाह ने कहा कि वही है, भामर तुमने कहीं इन का, शैतान मरी अगर पहले कोई हो गया। राम का बुत बना रहा है, मतलब राम अल्लाह को ताला ने पुकार जो रहा है, तो बात शैतान बोली, को क्यों पुकारेगा? वो राम को ही नहीं नहीं, पुकारेगा अल्लाह ना। ताला ने जो बात बोली कि वो राम को अगर कोई आदमी पुकार रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को पुकार रहा है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को पुकार रहा है, इस्लाम को पुकार रहा है। अच्छा, यानी कि वो नेक लोगों को नहीं पुकारते थे मुशरिकीन मक्का। नेक लोगों को वो पुकारते थे, लेकिन ये शैतान की इबादत हुई, बाकी नेक लोगों की। पागल असरा पागल आदमी। तो तू कह रहा है कि अरे गधे, कुरान समझ ले, तभी तो कबर पूजा कर रहा है। ये देखो, ये घामड़ वहाबी पी के मस्त मर इसी गया। कारण तो कबर पूजा कर रहा है। तुम मुकम्मल पहले पूरी बात बोल लो। ये बता, कबर पुजारी, पहले मुकम्मल पूरी बात बोलो। ये पत्थर पुजारी, पेड़ पुजारी, ये शराब पुजारी, ये बता, तूने अभी कहा था कि ये लोग क्या करते थे? ये मेरे लोग, टर्म में मत बोलना, खामोश रहे, तू जवाब देगा, टर्म कुछ नहीं मेरे है। टर्म में बोलेगा ना, डंडा से मारूंगा। तुम खामोशी सुना, जूता तेरे जो जिस जूते को डंडा से मारूंगा कबर पुजारी, डंडा से। बोलो, से तुझे मार के ना तुझे कब्र में डाल के डंडा से आऊंगा पूरूंगा मुर्दा। कबर पुजारी, डंडा से। अगर मैं तुमको मुर्दा बोलूं कि तुम वाली, कबर तुझे पुजारी के हो, तो अंदर तुम डाल कबर के पुजारी आऊंगा, होगे तू कि शैतान की मरकर पुजारी मिट्टी होगे? मिलेगा। जूते चलो से चलो मार चलो मार चलो के, चलो, जल्दी ऐसा करो, कबर मारूंगा पूजू। जूते से, बोलो, ऐसा मारूंगा ए जूते से, कबर पूजू, भिखारी जल्दी भीख नहीं बताओ, देगा शारिक समझ ही नहीं तुझे। पा रहा कबर पूजू कुरान को। अबे शारिक, तुझे ऐसा मारूंगा जूते से, भिखारी भीख नहीं देगा रे मोची। शराबी, सुन, तूने कहा है, देखो सामईन हजरात, इसने क्या कहा शुरू में कि वो नेक लोगों की इबादत करते थे, वो नेक लोगों को पुकारते थे। जब मैंने आयत पेश की तो कह रहा है नहीं, वो नेक लोगों के बुत बनाए हुए थे और पुकारते शैतान को थे, क्योंकि आयत में है, अल्लाह ने फरमाया कि ये शयातीन ही को पुकारते हैं। तो अब ये क्या कह रहा था कि नेक लोगों के बुत बना के शैतान को पुकारते थे। फिर इसको चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, हो गया, फिर ये चेंज हुआ। इसने कहा कि नहीं, वो पुकारते, नेक लोगों के बुत बनाए हुए थे, नेक लोगों ही को पुकारते थे। फिर ये बोला, ये इतने इसके बाप ने इसकी माँ ने इसके बाप नहीं बदले होंगे जितनी ये दावे बदल रहा है। ठीक है, तो मैं इससे चलो कबर पूजू, मेरा दावा सुन लो, कबर पूजू, मेरा दावा सुन लो, सुन ले। दावा सुन लो। हो गया, एक मिनट बोल लिया, खामोश। शराबी बताओ, खामोश बताओ, शराबी फिर से दावा कराम देखें। मेरा दावा था कि मुशरिकीन मक्का बुत के रंग में नेक लोगों को अल्लाह के यहाँ सिफारसी बनाते, बुत के रंग में नेक लोगों को अल्लाह के यहाँ सिफारसी बनाते, जिसको अल्लाह ने शैतान की इबादत कहा, ना कि नेक लोगों की। मेरा दावा कितना क्लियर है। अब देखिए, मैं अपने दावे की वजाहत करता हूं। देखिए कुरान की आयत से अल्लाह ताला कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। अब अल्लाह ने क्लियर कर दिया कि वो तो बंदों को पुकार रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने फिर अगली आयत में क्या कहा? सूरह अल-अहकाफ आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह ताला ने कहा, इस आज ये इतना बुरा फंसा है, ये बौखलाने लगा है शारिक वहाबी शराबी, ये शैतान पुज्जू, इनके पुकारने ही से आगे आ रहा हूँ, रुक जाओ। पुकारने से ही गाफिल है। जब लोग जमा किए जाएंगे तो वहाँ इसके दुश्मन हो जाएंगे और इसकी इबादत का इनकार कर देंगे। देखिए, लोग यहाँ पर जिनको ये पुकार रहे हैं, जैसे कि ये पुकारा या अली, तो अली रजी अल्लाह ताला इसको चप्पल खोल के मारेंगे वहां पर और बोलेंगे कि हम इसको नहीं जानते। अब जो है फंसेगा कौन? अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने दर हकीकत किसको पुकार लिया? शैतान को। वइयदऊना इल्ला शैतानम मरीदा, और तुमने शैतान ये बात कहाँ लिखी है? क्या वइयदऊना इल्ला शैतानम मरीदा? तुमने इन नेक बंदों के रंग में शैतान को पुकारा, तुमने शैतान को ही पुकारा, तुमने शैतान को ही पुकारा, ना कि बंदों को, ना ही बुत को। अब अगर वो शैतान को ही पुकारते, ये समझ करे पगले, शैतान को कौन पुकारता है? वो अल्लाह ने कहा, जैसे तुम अगर किसी या अली को पुकार रहे हो तो तुम अली को नहीं पुकार रहे हो, तुम शैतान को पुकार रहे हो पगले। अल्लाह ने कहा ओ पागल आदमी, अल्लाह ताला, अल्लाह ने कहा ये
अल्लाह ने कहाँ फरमाया ये? देखो, ये लोग जब इनकी नहीं चलती ना तो ये कुरान में तहरीफ करने नहीं लगते हैं। चलती है, कुरान का जवाब देना, कुरान का जवाब दे। कहाँ लिखा है? अल्लाह ने ये कहाँ फरमाया कि तुम हजरत अली अल्लाह को ताला ने पुकारो जो तो बात शैतान बोली को हो जाएगा। इल्ला शैताना मरीदा, और उन्होंने शैतान शर्कस को ही पुकारा, तो बुत कहाँ हाँ गए वहां से? हाँ, हो गई ना। तुम्हारा अम्मी के पास, ये देखो, ये अपनी अम्मी से पूछ बुत करके तुम्हारा आया अम्मी है के कि पास बुत गए कि कहाँ तुम्हारा गए, अब्बा और के ये पास गए? इधर जल्दी बताओ, इधर इधर बदतमीजी कर रहा है। चल जल्दी ठीक बताओ, है, बुत अब कहाँ खामोश गया? रहे, फिर अब अगर वो खामोश रहे, शैतान को अब पुकारते थे खामोश तो रहे, बुत अब किसके लिए खामोश बनाए रहे, थे? अब खामोश हाँ रहे, अब बताओ खामोश। बताओ, बुत किसके बनाए थे? हाँ बताओ बताओ। सामीन हजरात, जैसा कि आपने सुना कि मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? हाँ बात हो हाँ, रही है ठीक है ठीक मुशरिकीन है मक्का ठीक है की। तो अब ठीक है ठीक मुशरिकीन है। मक्का के ताल्लुक से इसने ये दावा पेश किया कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नेक बंदों को पुकारते थे, ठीक है। अब नहीं, अल्लाह गलत के बोल रहे नेक हो तुम, बंदों को पुकारते, तूने गलत नहीं कहा बोल था? रहे हो, किसको पुकारते थे? गलत बोल रहे हो मेरा दावा। क्या वो क्या है? पूरा दावा सुनो। ओ पगले आदमी, मुशरिकीन मक्का बुत के रंग में नेक लोगों को पुकार कर अल्लाह के सिफारशी बनाते। अल्लाह ने इसको शैतान की इबादत कहा, ना कि नेक लोगों की, तो समझा? हाँ, तो ये बता, मुशरिकीन मक्का जो थे वो किसको, नेक लोगों को पुकारते थे? बुत के रंग में नेक लोगों को पुकारते थे, बुत के रंग में नेक लोगों को पुकारते थे, लेकिन अल्लाह जैसे ने कि तुम इसको, कबर के रंग में, जैसे कि तुम कबर के रंग में नेक लोगों को पुकारते हो। सुन ले, हम कबर को नहीं पुकारते, हाँ हाँ हम अल्लाह के हाँ, तो वली वो भी को बुत को नहीं पुकारते हैं। पुकारते, वो नेक लोगों को हाँ, पुकारते हैं। अब तूने कहा है कि शैतान, हाँ वो जो मुशरिकीन मक्का थे वो नेक लोगों हाँ, को पुकारते थे, ठीक है। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। तो किसको? वो बुत के रंग में नेक लोगों को पुकारते थे, जैसे कि अबे तुम बुत कबर के का रंग में नेक रंग लोगों को हटा पुकारते उधर हो। साइड में, क्यों पुकारते यार, किसको थे? क्यों हटा दूं? बुत अच्छा, बुत का रंग हटा पुकार दूं? में अपनी किसका नाम लेते थे? अब बुत का सॉरी नाम बॉडी लेते को। थे। ये देखो भागा, ये कॉल काट के भागा सामीन हजरात। चले, इसका जनाजा तो निकल ही गया दोस्तों। कैसे? देखें, इसने कहा कि वो नेक लोगों को बुत के रंग में पुकारते थे, यानी कि बुत बना के नेक लोगों का फिर वो उनको पुकारा करते थे। तो अब ये कह रहा है कि इसको अल्लाह ने शैतान की इबादत कहा। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। इस दुनिया के हर एक जलील से जलील, सड़े गले और मरे से मरे वहाबी को मेरा नंगा पुंगा खुला एकदम बरहना चैलेंज है, और वो ये है, एक आयत, सिर्फ एक आयत पेश कर दो कि जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया हो कि ये नेक को पुकारते हैं और इसको मैंने शैतान की इबादत करार दिया है। पुकारते ये नेक लोगों को हैं, और लेकिन ये इबादत जो है वो शैतान की हो रही है। सिर्फ एक दलील पेश कर दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ कुरान मजीद में फरमाया कि ये नेक लोगों के रंग में शयातीन की इबादत करते हैं। अगर ये आयत पेश ना कर पाओ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि जिसने दीन में नई बात निकाली उसने बिदअत की और वो जहन्नुमी है। तो पता चला इस वहाबी ने जब इसकी बात नहीं चली तो इसने दीन के अंदर और कुरान शरीफ के अंदर तहरीफ करने की कोशिश की, जो कि ये कर नहीं पाया और ये जहन्नुमी साबित हो गया। दूसरी बात दोस्तों, अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको क्या फरमाया वो हम कुरान से बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि सूरह निसा की आयत नंबर 117 है, ये कह रहा है कि ये नेक बंदों को पुकारते थे बुतों के रंग में, लेकिन अल्लाह ने इसको क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया ये जो खुदा के सिवा परस्तिश करते हैं तो औरतों ही की, और पुकारते हैं तो शैतान सरकश ही को। ये घामड़ पागल जाहिल कज़्ज़ाब वहाबी कह रहा है कि ये बुतों के रंग में नेक लोगों को पुकारते थे, और अल्लाह फरमाता है कि ये पुकारते हैं तो शयातीन ही को। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि इन लोगों ने नेक लोगों के रंग में शैतान की इबादत की है, यहाँ इबादत की तो बात ही नहीं चल रही। ये मुशरिकीन मक्का जिनको पुकारते थे, तो मुशरिकीन मक्का का अमल अल्लाह ने बताया कि ये किनको पुकारते थे। ये घामड़ कह रहा है कि वो नेक लोगों को पुकारते थे बुतों के रंग में, और अल्लाह क्या फरमाता है कि ये शयातीन ही को पुकारते थे। नेक लोगों का रंग या फिर किसी शैतान का रंग, यहाँ कोई रंग की बात ही नहीं चल रही है। मुशरिकीन मक्का नेक लोगों को पुकारते थे, ये वहाबी ने कहा, शारिक सड़े हुए गले हुए वहाबी ने। और अल्लाह क्या फरमाता है कि ये शैतान ही को पुकारते थे। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान की ये लोग जहां इनकी बात नहीं चलती वहां तहरीफ करने लगते हैं और भाग जाते हैं कुरान शरीफ से और अपने मौक़िफ़ चेंज करने लगते हैं। तो जैसा कि इसने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये तुम्हारी ही तरह के बंदे हैं, तो शयातीन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे ही हैं। इस बात का इनकार ना तो कोई वहाबी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि शयातीन को भी अल्लाह ने बनाया है और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात नहीं मानी, तो वो
گمراہ ہو گئے تو وہ گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے، لیکن بندے کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت کے ہی بندے ہیں۔ تو اب یہ بات یہاں بالکل واضح ہو گئی کہ انسانوں کی ہی طرح یہ بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ یہ شیاطین ہی کو پکارتے ہیں۔ تو سڑا ہوا وہابی شیطان کذاب مکار ثابت ہوا، لعنتی ثابت ہوا، پھر سے کتنے روپے؟ 1,00,000 روپے لے کر کے بھاگ گیا۔ وہ کیسے؟ یہ واضح فرق ہے کہ شیاطین کو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے، اور ان کو اللہ رب العزت کا بیٹا اور بیٹی، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ یہ جنوں کو اور فرشتوں کو اللہ رب العزت کا بیٹا اور بیٹی تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ شیاطین ہی کو پکارتے ہیں۔ اور شیاطین کون ہوتے ہیں؟ جن ہوتے ہیں۔ تو واضح پتہ چلا کہ یہ لوگ ان کو مشرکین مکہ اللہ رب العزت کا بیٹا اور بیٹی گمان کرتے تھے۔ تو یہاں سے بالکل واضح فرق ہو گیا کہ سنی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا اور بندہ سمجھ کے وسیلہ پیش کرتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں، اور مشرکین مکہ بیٹا بیٹی سمجھ کے ان کو سفارشی بنایا کرتے تھے۔ تو سارق وہابی سڑے ہوئے گلے ہوئے شیطان سے کیا کرنا ہے؟ وہ 1,00,000 روپے جو کہ اس کی اوقات نہیں ہے دینے کی، وہ اس سے لے کر کے دینا ہے۔ اور دوستو یہ بات جو ہے کہ کل قیامت میں انکار کر دیں گے، تو بالکل یہ حقیقت بات ہے۔ جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے تو فرشتے اس بات سے انکار کر دیں گے کل قیامت میں، اور جو لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی اس کا انکار کر دیں گے۔ تو جب یہ سب انکار کر دیں گے تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ پھنس جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے ان لوگوں کی۔ اور جس شرکت شیاطین جن نے ان سے اپنی عبادت کروائی تو وہ سب ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ وہابڑے جو ہوتے ہیں قرآن شریف میں کیسے تحریف کرنے کی اور حدیث شریف میں کیسے تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب یہ پھنستے ہیں تو کیسے بھی کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی ناجائز، نامکمل، ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پھنستے ہی ہیں، کیونکہ باطل باطل ہی ہوتا ہے، اور باطل کو سچ کے سامنے رد ہونا ہی پڑتا ہے، ختم ہونا ہی پڑتا ہے، ڈوبنا ہی پڑتا ہے، پھنسنا ہی پڑتا ہے۔ دوستو اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ دوستو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل فرقے حق پر نہ ہونے کے باوجود اپنے کام میں کس قدر تیزی دکھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہو یا کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ